کہاں جا کے تم بیٹھو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ 2 منٹ میں کلاس سٹارٹ ہو جائے گی. شیخ طه سعید خالد مدنی حفظہ اللہ وتعالی آپ کو ہم کو جوائن کریں گے انشاءاللہ اور شیخ کلاس لیں گے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 منٹ ویٹ کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیخ اسٹارٹ کیجیے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ پڑھ اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. جس نے انسان کو وہ سکھایا. بے شک ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. یہ کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا. یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ کیا تو نے دیکھا اسے جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے؟ کیا تو نے دیکھا اگر وہ جھٹلائے اور منہ موڑ لے؟ کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آئے البتہ ضرور ہم گھسیٹیں گے پیشانی کے بال کو پکڑ کر یا پیشانی کے بال کے ذریعے. جھوٹی اور خطاکار پیشانی. بس چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کو بلائے. ہم جلد ہی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. ہرگز نہیں تو اس کے اطاعت میں کر اور سجدہ کر اور قریب ہو جا. یہ سورہ العلق ہے جس کا ترجمہ ابھی ہم نے سنا. اس سورت کے تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم يعلم، یہ آیتیں قرآن مجید کی نازل ہونے والی یا نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیتیں ہیں. یعنی نزول کے اعتبار سے یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی اور ان آیتوں کے نزول کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اور اس کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، تو ان آیات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا. یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیتیں ہیں نزول کے اعتبار سے. اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، تو اور یہ وہ عمر ہے جس میں عام طور سے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہوا
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رات میں دیکھتے تھے خواب، صبح وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی تھیں صبح کی روشنی کے مانند۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی پسند آنے لگی۔ آپ اپنے ماحول سے الگ تھلگ ہو کر اکیلے بیٹھنے لگے، اور یہی خلوت نشینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے باہر یہ غار ہیرا کی جانب لے گئی۔ اس پہاڑ کا نام جبل ہیرا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ غار تھا جس کا نام غار ہیرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کر کئی روز تک وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو باقی حصہ رہ گیا تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے توشہ بھی لے جاتے تھے۔ جب توشہ ختم ہوتا تو پھر اپنے گھر آتے اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے، پھر وہ چند روز کے لیے توشہ بنا دیتی، پھر اس توشے کو لے کر جاتے، پھر وہاں عبادت کرتے تھے۔ اس طریقے سے نبوت آنے سے پہلے یا نبوت پر سرفراز کیے جانے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طریقے سے تیار کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ خواب دیکھتے تھے صبح وہ چیز ظاہر ہو جاتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں چلتے تھے، پیچھے سے سلام کی آواز آتی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے بارے میں کہا، یہ وہ پتھر ہے جو نبوت پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ اور پھر آگے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی اچھی لگنے لگی۔ خلوت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے تھے تو جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے سامنے ثانوی تلمذ نہیں کیا تھا، کسی مکتب کا آپ نے رخ نہیں کیا تھا، اور آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا آتا تو نبوت کے بعد لوگ کہتے کہ اسے لکھنا پڑھنا آتا ہے، یہ جو پیش کر رہا ہے اس کا اپنا کلام ہے۔ گویا ہوا یہ کہ جب آپ نے ما انا بقارئ کہا تو فرشتے نے آپ کو سخت دبوچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے چھوڑا، پھر کہا اقرا، آپ نے وہی کہا ما انا بقارئ، پھر دوبارہ فرشتے نے دبوچا، یہاں تک کہ آپ کو سخت تکلیف ہوئی، پھر تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ایک عجیب واقعہ ہوا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے اور سخت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے اتر کر اپنے گھر آئے، اور گھر آ کر کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیا گیا، یہاں تک کہ جب خوف زائل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، اور ساتھ میں کہا انی خشیت علی نفسی، آج جو واقعہ ہوا ہے اس سے مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اعمال خیر کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مفلس کے کام آتے ہیں، مصائب پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو
जो ये सारी की सारी नेकियां करता है कभी रुसवा नहीं करेगा, ज़ाय नहीं करेगा। पहले तो खुद तसल्ली दी और मजीद तसल्ली के लिए अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो उस वक्त नसरानियत को कबूल कर लिए और अबरानी जुबान में लिखना पढ़ना उन्हें आता था। जब उन्होंने उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा, सारा वाक़या बयान किया, तो उस पर वर्का ने कहा, हादा हुवा नामूस, ये वो फरिश्ता है जो मूसा के पास आया था। और अफसोस करते हुए कहा, काश मैं उस वक्त मैं इस वक्त नौजवान होता। फिर ये कहा, अगर मैं जिंदा रहूं तो मैं आपकी मदद करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा कैसी बात क्यों कह रहे हो? तो उस पर वर्का ने कहा, जो चीज आप इस चीज को लेकर जो भी आया है, जो चीज आपको दी गई है, इस चीज को लेकर जो भी आया है उसके साथ दुश्मनी की गई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव मुखरिजी यहुम, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राजी होते थे, तो कैसे ये निकालेंगे? मगर वर्का बिन नौफल ने कहा, यही अल्लाह अज़्ज़ व जल की सुन्नत है। तो उसके बाद हुआ ये कि चंद दिनों के बाद वर्का का भी इंतकाल हो गया, वही का सिलसिला रुक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के मजीद मुश्ताक हुए। चंद रोज के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा का रुख किया और बाद मौरखीन ने लिखा है कि आप जो माह रमजान में गार हिरा में जाकर बैठते थे, कुछ मुद्दतें मामूल के हिसाब से बाकी रह गई थी, आपने उन मुद्दतों की तकमील करनी चाहिए और तकमील के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से नीचे उतरे और दोनों पहाड़ के दरमियान वादी में चल रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा महसूस हुआ कि आपके ऊपर कोई चीज है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को उठाया तो देखा कि वही फरिश्ता है कि जो गार हिरा में आपके पास आया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान और जमीन के दरमियान बैठे हुए थे और 600 पर थे, जिसकी वजह से आसमान का एक बड़ा हिस्सा छुपा हुआ था। नबी वसल्लम डर गए। रिवायत में आता है कि आप झुकते झुकते जमीन पे लग गए और खौफ के मारे घर पहुंचे और कहा, दस्सिरोनी दस्सिरोनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। और इसके बाद ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फतहिर वरुज़्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर। इन आयत के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब रिसालत पर फाइज किया गया। तो गोया सूरह अलग की ये वो इब्तिदाई आयतें हैं जो नुज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली आयतें हैं और नुज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की दूसरी आयतें सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयतें हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। तो इन इब्तिदाई आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दिया गया, इक़रा, पढ़, क्योंकि आपने बारहा कहा मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो आपसे कहा गया, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। तो इस तरीके से इस दीन की सबसे पहली तालीम ये थी कि आप पढ़िए। लेकिन पढ़ना कैसे, इल्म कैसे हासिल करना? अपने रब के नाम से पढ़िए, यानी उस इल्म को हासिल कीजिए जो इल्म के जिस इल्म से आपको अल्लाह की मारिफत हासिल हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल की पहचान हासिल हो और जिस इल्म के जरिए से आप सही माने में अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदा बनकर जिए। तो दीन इस्लाम में सबसे पहली तालीम जो दी गई वो पढ़ने की तालीम दी गई है, मगर यहाँ पढ़ने से मुराद वो पढ़ना है या इल्म से मुराद वो इल्म है जो इंसान को रब से करीब कर दे, न कि रब से दूर कर दे। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जहाँ अहले इल्म की तारीफ की है, वहाँ उनका वस्फ भी बयान किया है कि इल्म के साथ वो उन्हें ईमान से भी नवाजा जाता है। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। गोया वो इल्म मतलूब है जो इल्म के इंसान को ईमान से मुज़य्यन कर दे। और इसी तरीके से
तीसरी जगह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया अल्लाह से उसके बंदों में से उलमा ही डरते हैं। इल्म से मराद वो इल्म है जिससे इंसान के दिल में अल्लाह ताला की खशियत पैदा हो। तो इस आयत में कहा गया पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलका का मफूल महजूफ है, यानी जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने सारी मखलूकात को पैदा किया। उसके बाद फरमाया खलकल इंसान मिन अलक, उसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तो पहले सारी मखलूकात का जिक्र किया, फिर उसके बाद खुसूसी तौर पर इंसान का जिक्र किया, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो कहा जो इंसान अशरफुल मखलूकात है उसे अल्लाह ताला ने खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तेरा रब करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम से सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। वह इन आयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अभी तक आपको जो लिखना पढ़ना नहीं आता है इससे आप परेशान न हो, क्योंकि आपका रब आपको इल्म से नवाजेगा। वह इल्म आपको देगा जो इल्म के आपको अपने रब से करीब कर दे, क्योंकि वो रब जिसने खून के लोथड़े को एक शऊर वाला इंसान बना दिया, अक्ल वाला इंसान बना दिया और आगे चलकर उसे इल्म की नेमत से नवाजता है, तो क्या वो आपको इल्म से नहीं नवाजेगा? और कहा कि आप पढ़िए, आपका रब बड़ा करीम है, आपको इल्म से नवाजेगा। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को कलम से सिखाया और इंसान को सारी की सारी बातें सिखाई जो इंसान नहीं जानता था। इंसान जब माँ के पेट से निकलता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है, बेइल्म पैदा होता है। जैसे कि कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला, ला तालमून शैयन, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उसने तुम्हें दिल दिया, आंखें दी और जो है और कान दिए, तो ताकि इसके जरिए से तुम सीखो। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। इसके बाद शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप बेफिक्र रहिए, आपका रब आपको इल्म से नवाजेगा। इसके बाद बताया कि इंसान सरकश कब होता है, तो इंसान की सरकशी का जिक्र करते फरमाया कि इंसान उस वक्त सरकश होता है जब वो अपने आप को बेनियाज समझ लेता है। जब इंसान अपने आप को ये समझ ले कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ और मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जब ये तस्वुर इंसान के अंदर आ जाए फिर ये इंसान सरकशी के राह पर चल निकलता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में ये कहते थे अल्लाहुम्मा अस्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, ऐ अल्लाह मेरे सारे अहवाल की तू इस्लाह फरमा दे, मुझे एक लम्हा के बराबर भी, पलक झपकने के बराबर भी मुझे अपने नफ्स के हवाले न कर। तो इंसान की कामयाबी और इंसान की सआदत इस चीज में मुजमर है कि हर हमेशा वो अपने आप को अपने रब का मोहताज समझे, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह के नाम है असमद, कि बेनियाज। समद उसको कहते हैं जिसके सारे मोहताज हो और उसे किसी की जरूरत न हो। वह इंसान की सरकशी की जानिब आयत में इशारा किया गया। इंसान कब सरकश होता है, कब राह रास्त से हट जाता है, कब दूसरों पर जुल्म करता है, कब दूसरों को हकीर समझता है, जब वो अपने आप को बेनियाज समझ लेता है और अपने आप को मोहताज नहीं समझता है। यहाँ इस इंसान का इलाज जो बताया गया इन्ना इला रब्बिका रुजआ, ये इंसान ये समझ ले कि उसे
अपने रब की तरफ लौटना है। जब इंसान अपने अंजाम को समझ ले कि मुझे अपने आगाज को समझा कि खून का लौथड़ा था, और अपने अंजाम को समझ ले उसे अल्लाह की जानिब लौटना है, यानी वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बेनियाज नहीं हो सकता। इंसान अपनी हकीकत को समझ ले तो फिर वो खुदकशी नहीं कर सकता है। इसके बाद आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया, अराअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या आपने देखा उस शख्स को जो रोकता है बंदे को जब वो नमाज पढ़े। और आई तक का माने क्या आपने देखा, यह है कि आप बतलाइए, आप खबर दीजिए, यानी आप उस शख्स के बारे में खबर दीजिए, उस शख्स के बारे में बतलाइए जो बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़े। यानी अबू जहल ने कहा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे में नमाज पढ़ने नहीं दूंगा। यहाँ पर रोकने वाले से मुराद अबू जहल है और अब्द से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि आप बतलाइए उस शख्स के बारे में जो बंदे को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकता है। ये बतलाइए अगर वो यानी वो बंदा जो नमाज पढ़ता है हिदायत पर हो, हिदायत से मुराद इल्म नाफे और अमल साले पर हो, और या वो तकवा का हुक्म दे, यानी खुद इल्म नाफे और अमल साले पर हो और दूसरे को तकवा और परहेजगारी का हुक्म देता हो। और ये भी आप बतलाइए ये शख्स जो रोकता है अगर उसने झुटलाया और मुंह मोड़ लिया तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया दोनों के ताल्लुक से, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, ये शख्स जो इस नबी को नमाज पढ़ने से रोकता है, क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह ताला देखता है। जब अल्लाह ताला देख रहा है तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके मुताबिक फैसला भी करेगा और अपने नबी की मदद भी करेगा। तो इस तरीके से जैसा कि सीरत की किताबों में आता है कि अबू जहल ने एक बार कहा कि अगर मैंने देख लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते हुए तो मैं उनकी बेइज्जती करूंगा और उनके गर्दन पर अपने पाँव को रखूंगा, और कभी कहा कि मैं पत्थर से उनके सर को कुचल दूंगा। वो ऐसे कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल पहुंचा दारुन नदवा में, तो लोगों ने कहा तुम तो कह रहे थे कि तुम उनके सर को कुचल दोगे, देखो वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल बाज रिवायतों में है कि पत्थर लेकर आगे बढ़ा, बाज रिवायतों में है कि वो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर पांव रखे, इतने में पीछे पलटने लगा और उसका चेहरा का रंग बदला हुआ था। लोगों ने पूछा तुम्हें क्या हो गया है, तो उसने कहा कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में एक खंदक को मैंने देखा और जो इसमें जो इंतहाई खौफनाक था और इसमें पर थे, यानी एक मखलूक थी जिसके पर थे यानी फरिश्ते थे। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो मुझसे करीब होता तो फरिश्ते उसे नोच लेते और उसके एक एक हिस्से को जो है खींच लेते। लौ दना मिन्नी लख्ततफतहुल मलाइका। और दूसरी रिवायत में है कि एक मर्तबा उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते हुए देखा तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैंने तुम्हें नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सख्त बात कही, डांटा। तो उसने कहा कि तुम मुझे डांट रहे हो जबकि मक्के के इस वादी में मुझसे बड़ी जमात वाला कोई इंसान नहीं है, मेरे बहुत सारे हिमायती हैं, मेरे बहुत सारे मददगार हैं, तो तुम मुझे डांट रहे हो। इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आयतें नाजिल की। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फअन बिन्नासिया, हरगिज नहीं, अगर ये अबू जहल बाज ने आए हम अलबत्ता जरूर खींचेंगे पेशानी के बाल के साथ, यानी उसे उसके पेशानी के बाल के साथ घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। नासियतिन काज़िबतिन खातिया,
इसकी जो पेशानी है ये झूठी और खताकार पेशानी है, यानी झूठी है और खताकार का ताल्लुक उसके अमल से है, अमल के लिहाज से वो खताकार है, गुनहगार है, और जो अपनी बातों के लिहाज से वो झूठा इंसान है। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया वल यदउ नादिया, बस चाहिए कि वो अपनी जमात को बुलाए, तो उसने कहा था कि मक्के में जितने मेरे हिमायती हैं, जितने मेरे मददगार हैं, और मेरे मजलिस में जितने लोग बैठते हैं उतने लोग किसी और के मजलिस में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फल यदउ नादिया, बस चाहिए कि वो अपनी जमात को पुकारे, सनदउ ज़बानिया, और हम भी अनकरीब जहन्नम के दारोगों को या जहन्नम के फरिश्तों को हम भी बुलाएंगे। तो उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आखिर में फरमाया कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इस शख्स के यानी अबू जहल की इताअत मत कीजिए, इसकी बात मत मानिए। वस्जुद वक़्तरिब, आप नमाज पढ़ते रहिए, सजदा कीजिए, मतलब यह है कि आप नमाज पढ़िए, वक़्तरिब, और करीब हो जाइए। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते रहने का हुक्म दिया गया, और नमाज की ताबीर जो सजदे से की गई, इसमें इस जानिब इशारा है कि नमाज के जो अरकान हैं उनमें सजदा एक अजीम रुकन है, और हदीस शरीफ में है कि बंदा अपने रब से ज्यादा करीब इस हालत में होता है जबकि वो सजदे में होता है। इसीलिए हमसे कहा गया कि सजदे में कसरत से दुआ करो, क्योंकि सजदे की हालत ऐसी है कि इस हालत में दुआएं कबूल होती हैं। तो इससे ये बात मालूम हुई कि इंसान नमाज से अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, और नमाज से और सजदे से अल्लाह ताला की कुर्बत बंदे को हासिल होती है। ये जो सूरत है, जैसा कि आपने सुना, सूरत का नाम सूरह अल-अलक है। इसकी इब्तिदाई आयतें कुरान मजीद की सबसे पहली वही हैं, और इन इब्तिदाई आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दिया गया है। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म देकर आपकी उम्मत को इस बात का हुक्म दिया गया है कि ये उम्मत इल्म हासिल करे, या उम्मत पढ़े, और ख़ास तौर से इल्म का एक अहम वसीला कलम का जिक्र किया गया है कि कलम के ज़रिए से इंसान लिखना और पढ़ना सीखता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि पढ़ने के लिए जो वसीले हैं उन सारे के सारे वसाइल को अपना कर हम लिखना और पढ़ना सीखें। मगर यहाँ पर एक तवज्जो इस बात की जानिब दिलाई गई कि इल्म से मुराद वो इल्म है जो जिसका ताल्लुक अल्लाह के नाम से हो, यानी जिसके जरिए बंदा अपने रब के करीब हो जाए, अपने रब को पहचान सके, और अपने रब की खशियत उसके दिल में पैदा हो, और जिससे जो इल्म के उसे ईमान के चौखट तक पहुंचा दे, वही वही इल्म है जिसको पढ़ने का हुक्म दिया गया। और उसके बाद आगे जो अबू जहल का जो वाकया है, उस वाकये की जानिब इशारा किया गया। अबू जहल, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का फिरौन करार दिया था, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से, आपको और आपके सहाबा को हर किस्म की अजियत दे रहा था, तकलीफ पहुंचा रहा था, उसका जिक्र किया गया कि वो किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकता है। तो गया उसकी हकीकत बतलाई गई कि वो शख्स जो सरकशी पर उतर आया है, नबी की तकजीब करता है, हक की मुखालफत करता है, इसकी वजह ये है कि उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया है। और इसमें इंसान की हकीकत बतलाई गई कि इंसान जब अपने आप को बेनियाज समझ लेता है, वहीं से उसका जवाल शुरू हो जाता है, वो सरकशी पर उतर आता है। इसलिए एक तवील हदीस में है कि, और वो हदीस हदीस कुदसी है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, तुम सबके सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, बस तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। और ऐसे ही ऐ मेरे बंदो, तुम सब के सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं, मुझसे कपड़ा तलब करो, मैं तुम्हें पहनाऊं। ऐ मेरे बंदो,
तुम सारे के सारे रात और दिन गलती पर गलती करते हो, तो मुझसे मगफिरत तलब करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और उसके बाद यह है कि तुम्हारे अगले तुम्हारे पिछले सारे के सारे मिलकर मुत्तकी और परहेजगार बन जाए, इससे अल्लाह के मुल्क में बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा। और सारे के सारे मिलकर फाजिर और फासिक हो जाए, इससे अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाहत में कोई कमी नहीं होगी। और अगले और पिछले इंस और जिन सारे के सारे एक जगह जमा होकर अल्लाह ताला से मांगे, और अल्लाह ताला इनकी मांग को, इनकी मुराद को पूरी कर दे, इससे अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होगी। उतना ही जितना कि एक सुई को समुद्र में डुबो के उठा दिया जाए। और उसके बाद उस हदीस में है, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं गिन गिन कर रखता हूँ, कल क़यामत के रोज जो खैर को पाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो खैर के अलावा किसी और चीज को पाए फला इलुमन्ना इल्ला नफ्सा। गोया इस सूरत के अंदर एक अजीम हकीकत के जानिब इशारा किया गया, वो ये है कि बंदा अपने आप को कभी बेनियाज न समझे। इंसान की अपनी तख्लीक ये है, इंसान खाने के लिए अपने हाथ का मोहताज है, हजम करने के लिए बहुत सारे आज़ा का मोहताज है, दांतों का मोहताज है। तो इंसान किसी भी हालत में अपने आप को बेनियाज नहीं समझ सकता, इंसान बेनियाज हो ही नहीं सकता है। जहां इंसान अपने आप को बेनियाज समझ लिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वहीं से इंसान के अंदर सरकशी आ जाती है। जैसा कि अबू जहल के अंदर सरकशी आ गई और उसने अल्लाह के नबी की तकजीब की, अल्लाह के नबी को झुटलाया, हक को उसने झुटलाया, नबी और सहाबा को उसने तकलीफ दिया। और उसने जो तकलीफ दी उसकी एक शक्ल ये बतलाई गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोका, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत पर थे और लोगों को तकवा का हुक्म देते थे। इस आयत में एक और हकीकत ये बतलाई गई कि इंसान अपनी इब्तिदा को और अपने इंतहा को समझ ले, तब भी उसकी इस्लाह हो जाएगी, वो सरकशी पर नहीं उतरेगा। तो इंसान जो सरकशी करता है उसकी वजह यह है, अपने आप को बेनियाज समझता है, वो सोचता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इंसान अपनी इब्तिदा को भूल जाता है और अपने इंतहा को भूलता है। जब इंसान अपनी इब्तिदा को भूले कि वो कैसे दुनिया में आया, उसकी हकीकत क्या थी, और फिर दुनिया में आने के बाद उसे कहाँ जाना है और कहाँ लौटना है, जब इसको समझ ले तो ये इंसान कभी सरकशी नहीं करता है। और अबू जहल ने जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी थी और आपके साथ जो सुलूक करना चाहता, उसके जानिब इशारा किया गया और फिर ये बतलाया गया कि अगर अबू जहल अपनी जमात को बुला रहा है तो हम भी जो फरिश्तों को बुलाएंगे। और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप इस सर्कस आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम तुल्ला। शायद नेटवर्क की वजह से अटक गया है शेख का वीडियो। वैसे क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, एकदम लास्ट इसमें आ गए हैं। जी जी, दुआ पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला